ये था मैं ये था पहले। हाँ, तो इसको रखना नहीं है, इसको चलाते रहना। जितना आप इसके साथ में कनेक्शन अच्छा बना लेंगे चलाने का, जी। उतना ही ये काम करेगा। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से कि आप दिखें पूरा हाथ चलाते हुए। हम्म। ये दोनों अंगूठे जो हैं ये उसके उस पे आएंगे। हाँ, अब ये। ये साइड में। हाँ, मतलब थोड़े दिन प्रैक्टिस बनाने के लिए, बाद में तो ये हाथ में एज इट इज एडजस्ट हो जाता है। ऐसा मान लीजिए जैसे एक पेंसिल को ना हाथ के बीच में खड़ा करना है, जी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये सर इसमें एक चीज मैं गौर कर रहा हूँ, ये अंदर आने पे अंदर की तरफ डाउन हो रहा है, बाहर जाने पे बाहर की तरफ गिर रहा है ये। इसका तरीका भी यही है। आप एक्चुअली ना वीडियोस वगैरह देख नहीं रहे जो बाकी लोग कर रहे हैं ना, उसके तौर पे मैं तो ये सबको वीडियो। देखता हूं पहले कि कोई भी व्यक्ति ये पूरे सिस्टम को करता कैसे, क्योंकि हो सकता है हमारा तरीका भी गलत हो सकता है, हमारा अप्रोच में भी फर्क हो सकता है। थियोरेटिकली मॉडल ये है कि आप इसको अपने हाथों के बीच में बैलेंस कैसे बना रहे हैं, ये थियोरेटिकल मॉडल है। जी। तो अभी क्या है कि ये आपकी उंगलियों के बीच में आगे पीछे चल नहीं रहा है, तो इसको कितना होल्ड करना है और कितना छोड़ना है, यही प्रैक्टिस आपको करनी है। मतलब एक एक घंटे बैठ के भी करना पड़े तो ये इसको करिए, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को तैरना सिखाना। तो हम थ्योरी बता देंगे उसको सारा कुछ करने का, लेकिन ये वाला प्रैक्टिस चलाने का आपको ही करना पड़ेगा। अभी देखिए, ये आपने इतना टाइट पकड़ा, हाँ, ये जैसे आगे आते वक्त गिर रहा है और पीछे जाते वक्त पीछे जाए, ये आपको डेक्सटेरिटी लानी है। ये इधर आने पे ये पीछे ही गिर रहा है और बाहर आने हाँ, पे। मतलब इसका तरीका भी यही है। एक सेकंड रुकिए, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। Hello. Okay, let's check the energies of the rooms in a house. This is a house and this room is in the southeast. Now let's see what the energies are and we can also energize. Hello. So today let's check the energies of the rooms in a house. This is a house and this room is in the southeast. Now let's see what the energies are and check the energies of the rooms in a house. This is a house and this room is in the south. देखिए ये कैसे होल्ड कर Now रही है और let's कैसे चला रही है। सिंपल सा पार्ट है, इसको देख लेते हैं। इसका अंगूठा कहाँ पर है, इसके दोनों हाथ कहाँ पर है, पहले लास्ट फिंगर कहाँ पर है। guys, the Lecker antenna. This is a Lecker antenna, if you're aware of this, which reads the cosmic energies. It works with cosmic energies, the telluric or the earth energies, and our thermal energies. And these are the units that we can see the energies at. So let's check
first let's start with the minimum energies. So is this room at this energy? Yes. So we started with 1500 units. Let's increase it a little, 4000 units, and check whether this moves entities fall into this. Yes, so 4000 units. Let's increase it a little further to 5000 units and check. The moves energies value to 5000. So it is dropping slightly. A little inclined, so we can further go to 5500 and check. Now let's check the energies again. I'm at the approximate center of the room. This is now still, it's not moving further. So it means the 5000 unit that we check is the last reading for this room's energy. Right? Now, anything below 7000 units is very less energy. It's not too bad, I guess it's very bad. Now, when we talk to the native mentioned that this money is blocked, and this is the southeast. We have done a couple of remedies, but the native has not got enough time to declutter the space and to take care of the bare walls and the seepages over here. So let's try to energize this room, this direction with the Lecker antenna, and then let's see the energies again. So now, putting it at maximum, the maximum energies of any given space. This is the maximum, 17,600. So let's energize this room now. Now the Lecker antenna has helped us energize this room to the maximum energy levels. Let's scan now. So we have stopped at 5000. Let's see at 5500 how the energies of the screen are. Yes, it's dropping now at 5500. Let's move a little further at 7000. Check how much the energies have increased on this room now. It's further moving and 7000 again. Let's move it at 9000 and check. 9000, which is now raising the maximum energy of the energy is. So, care further details. Wait for the next video. Thank you for watching us. Thank you. वो टॉनिक हीलर हैं है जी। टॉनिक हीलर हैं ये ये मास्टर चोको सुई का फोटो लगा हुआ था इनके वॉल पे The house. It's the house and this room is in the southeast. Now let's see what the energies are and then we can also energize. तो मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं गोचर जी के भी देखे हैं बहुत ढेर सारे वीडियो जो आपने भेजे थे कल मुझे हाँ, मतलब वीडियो इसलिए होता है, सिर्फ आपको उसका प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। जिस दिन ये से आप क्या आया है वो कर रहे थे इन लेडी, इसकी लेडी, ये जो लेडी ये कर रही थी, पराग गुप्ता या पायल गुप्ता, क्या नाम है इसका? टॉनिक हीलर हैं ये अच्छा, यार ये तो सब में चलता है कोई भी हीलर हो ये तो सबके लिए अगर चलाए तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी इससे तो देखिए, सबसे मोटी बात जो है ना, जो इसमें कोई जना नहीं कर रहा, वो क्या है, ये डिवाइस अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर आपका जीवित शरीर है, जीवित शरीर मतलब अगर आपके शरीर में आत्मा है,
और आप इस डिवाइस को अपने साथ में साध लेते हैं। और साधने का मतलब सिर्फ इसके बैलेंस करने की बात है, ये मतलब ये इसने अभी ये डिमॉन्स्ट्रेट करा कि लेकर एंटीना से मैं हीलिंग कर रही हूँ, एक जगह जी, को 17,000 यूनिट पे ला रही हूँ, वो झूठ बोल रही है। वो तो उसको एनर्जाइज भी कर रही थी। हाँ, तो वो मंत्रों से एनर्जाइज कर रही है और उसको ये बता रही है कि ये लेकर एंटीना से एनर्जाइज हो रहा है, तो वो तो पॉइंट ही बेवकूफी का है। लेकर एंटीना में कुछ होता ही नहीं कि वो जो है उसकी वो मतलब उसको कुछ भी कर पाए। लेकर एंटीना इट इज जस्ट अ मेजरिंग डिवाइस, और वो भी एक बेसिक थ्योरी है। वो किसी भी चीज को एनर्जाइज नहीं कर सकती। एनर्जाइज अगर आप करेंगे तो आप ही कर सकते हैं। आप मंत्र उच्चारण करें, बीज मंत्र लिखें, वो क्या कहते हैं, वो बुद्धा की मूर्ति लगाएं, जो मर्जी करें, टॉर्टोइज रखें, मतलब वो सारी की सारी चीजें उस टाइप से हैं। मेन आपको जो समझना था इस वीडियो को देख के, वो उसने होल्ड कैसे कर रखा था। उस तो साइड से आप ऐसे। दोनों हाथों के बीच में जब उसके होल्ड करने को तरीके को देखते हैं, तब वो मूवमेंट आपके सामने आता है। एक और वीडियो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें किसी दूसरे के हिसाब से भी। वैसे गोचर जी का बहुत अच्छा है, जो आपने कल भेजा था। उनका मैंने पहले भी बहुत ढेर सारे वीडियो देखे हैं, उनका अच्छा है। वो पूरा सिर्फ उसको सिखाना ही, पूरा उसका कोर्स ही कराते हैं सिखाने का, इसको कैसे इसको भाई देखिए, पकड़ना। ऐसा है, मैं तो इंटरनेट को ये जब भी कोई चीज आरती करती है उसको स्टडी जरूर करता हूँ, क्योंकि उसके पास में तो वो टाइम होता नहीं है। मतलब अभी ये कितने दिन हो गए आपके पास लेकर एंटीना आए हुए? हम्म, एक हफ्ता तो हो गया। ठीक। आपको चलाने में कितना टाइम लगा अभी तक? चला पाए आप इसको? नहीं, चलाया, मैंने चलाया, लेकिन बस वही है कि चीजें समझ में नहीं आ रही थी वो। अभी आरती ने अभी वो जो जिससे हमने लेकर एंटीना खरीदा था, क्या नाम है, जी। शालिनी गुगनानी नाम है उसका, जी। उससे 15 मिनट बात करी। उसने कहा इसको ऐसे चलाते हैं। आरती ने उसको चलाया उसके सामने, 15 मिनट लगे उसको सीखने में, सिर्फ 15 मिनट। और 15 मिनट के अंदर वो लेकर एंटीना चलना शुरू हो गया। जैसे वो आरती क्वेश्चन डाल रही थी, वैसे वो चला के दिखा रही थी। आपका अच्छा, मैं तो जो चीज आरती पकड़ती है वो मैं छूता ही नहीं। घर में झगड़े होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है ट्रेनिंग लेना और देना, तो मैं उसके हिसाब से मटेरियल देखना शुरू कर देता हूँ। फिर जब उसको देखता हूँ तो फिर दोनों को टैली करता हूँ। और फिर जो जो चीजें मुझे समझ में आती हैं कि उसको पता होनी चाहिए, वो चीजें उसके सामने रख देता हूँ। पर उसको सीखने में और इम्प्लीमेंट करने में उसे टाइम लगता है। फिंगरप्रिंट एनालिसिस, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, लेकर एंटीना, मतलब उसने एक ही बार सुना है इन सब चीजों के बारे में, और एक बार में उसको करना शुरू कर दिया। जी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा प्रोसेस बहुत इजी है। आपको सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करना है। वो गोचर जी के भी मैंने वीडियोस देखे थे, अच्छे वीडियोस हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो कई साल से कर रहे हैं। दो तो सालों से उनके कर जो रहे हैं। वीडियोस देख रहा था मैं, 30-35 वीडियो दे रखे थे। कुछ ऐसे थे जब वो जवान थे, और फिर उनकी उम्र हो गई, तो ऐसे करके उन्होंने अपने वीडियोस और उसके तौर पे रखा। तो आपको सिर्फ इसके होल्ड करने के तरीके को देखना है। एक वीडियो और उठाते हैं, रुकिए। सर एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, ये जो फिंगर लगी हुई है, लास्ट वाली फिंगर, तो अंदर आने पे ये इसको रोकती है, और बाहर गिरने पे आप इधर से होल्ड किए हुए, ये टर्न हो जा रहा है हल्का सा। ये इस पे टर्न हो जा रहा है ऐसे। ये जब तक ऐसे ऐसे प्रॉपर ऐसे नहीं आएगा, तब तक ये अच्छे से नहीं चलेगा इसका। जिस दिन ये बिल्कुल स्मूथ आ जाएगा ये। क्योंकि सर मैंने डाउजिंग भी की है, और मैंने एलरॉड भी चलाई है। हम्म।
तो चलाया आपको मैंने तो सब कम कुछ। टाइम लगना चाहिए और किसी और के मुकाबले। ये उतना अच्छा नहीं, ये ग्रिप में नहीं आ रहा है ये। ग्रिप की बात नहीं है। आप देखिए, मैं एक चल सिंपल नहीं सा रहा। चीज है, उसको उसको सबसे पहले उसका सही तरीका देखिए होल्ड करने का। घूमने का मेन तरीका ये। मतलब वो हाथ में जो है आपके इस तरह से आए, ये पूरा। अब ये आपको अपने हाथ को ऐसे अलाइन करना है कि ये बैलेंस हो। जी। बैलेंस में फ्री फ्लो आपको आइडेंटिफाई करना है। जी। आप उसको हाथ में जो पकड़ रहे हैं उसको पकड़ने पे आपका फोकस नहीं जाना चाहिए। आपका फोकस जाना चाहिए उसको खड़ा बैलेंस कर ओके करने में। जी। जैसे साइकिल चलाते हैं ना दोनों हाथ छोड़ के, बट पहली बार हम्म। में थोड़ी करते, पहली बार में तो हाथ हल्का सा आगे पीछे। सिर्फ बैलेंस को आइडेंटिफाई करिए। आपको दिक्कत लगती है, पहले तार हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अटेंशन ही ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हो। इसको हटा दीजिए, कोई क्योंकि शुरुआत में मैंने एल रॉड चलाई है। एल रॉड चलाने में क्या हुआ कि एल रॉड को भी पकड़ने का तरीका होता है कि उसको अगर आपने थोड़ा सा ऊपर करके आपने पकड़ा है, अगर उसको ऊपर की तरफ हल्का सा खड़ा किया है, तो वो फटाक से मूव कर जाती है बैक। और अगर नीचे की तरफ आपने करके हल्का सा नीचे उसको कर रखा है, तो वो खटाक से नीचे की तरफ मूव कर जाती है। तो हम्म। सबसे मेन तो वही होता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे हो। अब वो चले एनर्जी से या आपकी साथ में, तब तो समझ में आता है। लॉट चलाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि उसमें होता कि यही था सर, थोड़ा सा हिसाब से नीचे हो देखिए, जाएगा। मेन मुद्दा ये नहीं है कि उसको चलाने के तौर पे, मेन मुद्दा है उसको बैलेंस स्टेट में रखना, कि बस गिरे होल्ड ही, नहीं। आप मेन होल्ड। आपको ये प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसकी प्रक्रिया को पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसको सिर्फ ऐसे होल्ड करिए कि ये सीधा हाथ में टिका रहे। होल्ड ही सर मेन है इसका। होल्ड हो गया तो ये सही से चलेगा। देखिए, आप अंगूठा गलत रख रहे हैं ना, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। आपको अंगूठा जो है उसकी साइड में रखना है, एक उंगली अंदर रखनी है, एक तो मतलब बैलेंस करने के हिसाब से ये इसका हाथ का तरीका हो गया ये। ऐसे करके अपने हाथ पे ऐसे करके अपने हाथ पे बैलेंस रखना है। ये तो मतलब कायदे से सिंपल है, बट वो आपको जो है थोड़ा हाथ जब चलाएंगे, अब ये ऐसे आपने जैसे पकड़ रखा है, आपका दूसरा हाथ दिखाइए किधर है, पूरा दिखाइए। अब ये हाथ दिख नहीं रहा, आप थोड़ा सा पीछे को बैठिए ताकि दिखे पूरा। अब इसको जैसे आपने पकड़ा है उसी तरह से अब इसको हाथ को आगे पीछे करिए। अब एक एक उंगली को लूज करते जाइए, अंगूठे को लूज करते जाइए, धीरे धीरे आगे पीछे करते जाइए बस इसको। जब ये आप आगे की तरफ लेकर जाए और ये आगे की तरफ गिरे, और जब आप इसे पीछे लेकर आए तो ये आपकी तरफ को गिरे, ये आपका बेसिक सबसे पहला अभ्यास यही होना चाहिए। आप इसको ना अंगूठे से दबा रहे, दबाना नहीं है इसको, सिर्फ के अपने हाथ को। ये इसका तरीका ये है, आप अपनी तरफ को लाएंगे तो ये अंदर आए, जब आप इसको बाहर दो अपने से दूर लेकर जाएंगे तो ये पीछे गिरे। यही आपका बैलेंस का अप्रोच होगा। ये अंदर आने पे तो आ रहा, बाहर जाने पे तो बाहर जा रहा। हाँ, ये आपको यही बैलेंस को बढ़ाते जाना है।
अपने हाथ को इस तरह से आगे पीछे रखिए। इसके लिए घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बैठ करके। नहीं, ये तो आपको, अगर आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत है तो आपको अपने बैलेंसेस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मतलब मेरे यहाँ तो बहुत सारे लोग, रमेश जी आए, एक वो शुक्ला जी थे, वो आए, वो सबको उसको चलाने में दिक्कत ही नहीं पड़ी। रमेश जी तो खैर क्योंकि बहुत सारी चीजें जानते हैं, तो मतलब मैं उसके तौर पे नहीं, बट मोटा मोटा जो है। हाँ। अब ये जो गिरा, ये गिरे नहीं, आगे ना पीछे, इसको हाथ को ऐसे ही चलाने के तौर पर है। ऐसे सब देखिए, ऐसा हाथ का मूवमेंट ऐसा देखिए, ऐसे, ऐसे। इसमें तो चल रहा है इससे। हाँ, शुरू हो गया। यही चीज को आपको सिर्फ बैलेंस करना है, हाथों को आगे लेके जाना है, पीछे लेके आना है, आगे लेकर जाना है, पीछे लेकर आना है। नमस्ते सर। नमस्कार। सॉरी। नो प्रॉब्लम। आपका लेकेरेंटिना नहीं आया ना, इसलिए आपने कहा चलो मैं लेट भी जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सही तरीका हुआ आपका। अब आया आपको पकड़ में। यस। अब ये ऐसे ही आप 100 बार चलाइए। अब चलाते चलाते अपनी टंग को पैलेट से टच करना है, और अपनी सोल सीट को रिक्वेस्ट करना है कि मुझे इसको बैलेंस करने में हेल्प करे। ये मनी मन आपका चैंटिंग चलता रहे। दिक्कत लग रही हो तो श्रीम चैंटिंग कर लीजिए, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, मनी मन। अब देखिए कितनी देर लगी। पहले मैं सोचता था, जब ये मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा ये तो कोई भी कर सकता है, कुछ भी झूठ बोलना हो, सच बोलना हो, आगे कर लो, पीछे कर लो। जब मैंने पहली बार चलाया मुझे पता चला ये तो संभाल में ही नहीं आ रहा। झूठ और सच का क्या करो। मैंने तुरंत छोड़ दिया, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है ये, मैं आरती को देता हूँ। आरती तुम करो ये वाला पार्ट, ये मैं नहीं कर सकता। बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, मुझे बड़ा मजा आया। सबसे सिंपल बात क्या है कि जैसे कोई एल रॉड चलाता है, उसमें दो रॉड जो है वो सीधे सामने होती है परपेंडिकुलर के तौर पे। इसमें वो खड़ी है ऑलरेडी। ये जो लूप बना हुआ है इस तरह से, ये ऑलरेडी वो लूप है। इसको आप मानेंगे ऐसे कि जैसे दो एल रॉड जुड़ी हुई है ऑलरेडी। चलिए, तब तक एक आध वीडियो देखते हैं, आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, मैं 1 सेकंड उसको लगाता हूँ। क्या आपको पता है कि बॉडी की एनर्जी को स्कैन करके आप इजीली इसके घर के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं? मैं परेश गोसर
एनर्जी वास्तु कंसल्टेंट एंड फॉल्ट्स हो सकते हैं। क्या करते हैं तरह से ऊपर पार्ट ऑफ द बॉडी डिफरेंस है ना, व्हाट डू दे तो करते हैं वास्तु के अपकमिंग कोर्स जो आप बता लेवल 2 के ट्रांसलेटर एंटेना के सेटिंग्स पे हम आप 15.3 पे रख के स्कैन कर पाएंगे और जो डिफ्लेक्शन आएगा अपने आप स्कैनिंग करने पे ये डिस्क्रिप्शन की talks about the set on its own and what you whether they are करके the telluric and you can scan सकते हैं और ये बताने done of his and consultation कर 15.3 will find in a description in the comment box. Okay, so thank you for watching this video. Thank you friends कि आपने ये वीडियो देखा अंत तक और नंबर होगा कमर्शियल क्या इनको किया है और ये पायलट से उनके भी से भी मैं नहीं 70 उसमें वहां पे कॉपर की स्ट्रिप और साउथ साउथ वेस्ट में वो आधा साउथ और हो उसकी उस तरह की उसमें हो अच्छी क्वालिटी की ताकि वो अच्छे लेवल पे काम कर सके। तो आगे के वीडियोस में अभी आप देखेंगे एक प्रोफेशनल वास्तु का एंटेना है ना कि ये एंटेना और ये एंटेना में क्या फर्क है। एक एंटेना में कि आपको ये सारी चीजें जो और जो दोनों करनी होती है ओरिजिनल एंटेना से चेक करेंगे तो ये दिक्कतें। तो राम संपत जी अब मैं संपत जी का संपत है बिना बताए तो हमेशा परमिशन अलग बात है अदर बेसिकली ये आपने इसका एनर्जी तो अर्थ की एनर्जी में भी मूवमेंट इज देयर बट वेरी लो एनर्जी मूवमेंट इज देयर। ठीक है अब ग्लोबल एनर्जी की तो अर्थ की एनर्जी में भी मूवमेंट इज देयर बट वेरी लो एनर्जी मूवमेंट इज देयर। ठीक है अब ग्लोबल एनर्जी की मैं चेक करूंगा एनर्जी तो यहाँ पे मूवमेंट मेरे एंटेना पे मेरे हाथों में नहीं। ठीक है इस पार्ट के एरिया में कहीं ना कहीं आपकी है ना जो भी चक्र है यहाँ पे अभी थ्रोट है हार्ट चक्र है नेवल चक्र है ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं या कोई ऑर्गन में या बैक में या कहीं पे कुछ भी आपको होगा कोई इश्यू उसको लेके यहाँ की ओवरऑल जो सम ऑफ द एनर्जी है वहां पे मूवमेंट नहीं बता रहे। तो ऐसा कुछ अगर आपको पता है ना तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। थ्रोट चक्र तो मेरा बिल्कुल अच्छा है। अभी मैंने बॉम्बे आया था मैं और बॉम्बे में मैंने जो बायो बायो और ट्रीटमेंट की एनर्जी होती ना वो मैंने टेस्ट किया था। रिपोर्ट है मेरे पास सारे चक्रों की। तो अभी सब अच्छा है उनके हिसाब से सारे चक्र मेरे अच्छा है सारा बैलेंस है कुछ है भी ऑर्गन में फिर भी है और ज्यादा वीक है बेसिक। अब यहाँ पे मूवमेंट देखिए थोड़ा ज्यादा आ रहा है कॉस्मिक विनोद जी का था कॉस्मिक एनर्जी फिर टेल्यूरिक और फिर ग्लोबल। अब यहाँ पे मूवमेंट देखिए थोड़ा ज्यादा आ रहा है कि नहीं कॉस्मिक एनर्जी पे। ठीक है अब हम चेक करते हैं टेल्यूरिक एनर्जी। अब टेल्यूरिक एनर्जी में थोड़ा मूवमेंट अलग तरह से आ रहा है। ठीक है नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या है वो मैं बताता हूँ है ना इनसे साथ कन्वर्सेशन करके मैं आपको बताता हूँ क्या है। और अब हम चेक करते हैं ग्लोबल एनर्जी। ठीक है तो ग्लोबल एनर्जीज में भी है ना डिप जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। तो है ना आप ज्यादा मेडिटेशन वगैरह में है कैसा है क्या है आपके बारे में बताइए थोड़ा। मेडिटेशन वगैरह में थोड़ा ज्यादा है ना क्योंकि इनकी कॉस्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है पावरफुल है पॉजिटिव ज्यादा अच्छा फ्लो है एनर्जी का। लेकिन वहीं पे आपका टेल्यूरिक एनर्जी अर्थ एनर्जी ये थोड़ा नेगेटिव साइड में जा रहा है। अच्छा और फिजिकली भी कुछ आपको दिक्कत ऐसा कुछ आपको पता है क्या लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं पता है। तो वहां के चक्र मूवमेंट एनर्जी वाइज है ना वहां पे थोड़ी एनर्जी बिकॉज मे बी ऐसा भी होता है कि जब हम ज्यादा कोई एक फील्ड में चले जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के तो ये जो अर्थ एनर्जीज है फिजिकल वर्ल्ड की एनर्जीज है मनी रिलेटेड एनर्जीज है ना वो कम हो जाती है लो हो जाती है। ठीक है ना तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर फिजिकली नहीं है तो एनर्जी लेवल पे उसका फिर फर्क बताता है। ठीक है और ग्लोबल एनर्जी ऐसा कुछ पता है आपको नहीं है
ठीक है ना, पर वहां के भी चक्रस की एनर्जीज आपकी यहाँ पे ही सारी एनर्जी है ना, पूरी बॉडी बिकम अ बेस्ट एनर्जी। तो बेसिकली जो ओरी कॉपी वाला तो आपको चाहिए, देयर आर, तो इसके लिए सिग्नल एंटेना या इसके लिए भी वो महंगा। So now I am going to check his cosmic energy, that is this part of the body, and then talk about his house. Let us see how far we can go. ठीक है, तो the antenna movement showed me around 25%. चलो अब हम टेलरिक एनर्जी चेक करते हैं, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट का क्या है इनके बॉडी से। तो साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट में बॉडी पे एनर्जी मूवमेंट नहीं बता रहा है एंटेना का। तो यस विष्णु कुमार जी, गिव मी। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है परेश। 3x, यस, ऐसे बिजनेस को 3 टाइम किसी ऑनलाइन सेशन में एंटेना एंड इज डिफरेंट। आठ पावरफुल रीजंस मैं आपको, है ना, ये एटमॉस का ओरिजिनल एंटेना है। कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे इनका सिंबल है, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ आता है वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे कर्सर है, ये 3x, यस। So now I am going to check his cosmic energy, that is this part of the body, and then talk about his house. Let us see how far we can go. ठीक है, तो the antenna movement showed me around 25%. तो अब हम टेलरिक एनर्जी चेक करते हैं, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट का क्या है इनके बॉडी से। ठीक है, तो साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट में बॉडी पे एनर्जी मूवमेंट। clinical stand with electric block for ultraviolet and line scale. Preparing to use your, as you become experienced, you may widen the grip, which will also equate to a that key with your Lecker instrument. Hitting for you is the highest possible quality. Any product that responds to your lines to descend to the point where you feel confident with the presence of a positive response nates with you. It's across the globe. Conductive cord and visionary results in clinical practice. Goal of traditional acupuncture and the precise system for enables you to run a highly system instrument in clinical practice of health. To learn about bioresonance analysis of health, So I grew up in West Texas in a town called Midland. चक्र में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इसके अलावा कैलोरी एनर्जी जो भूमंडलीय ऊर्जा है वो आपको प्रॉपर मिल रही है। दूसरा कॉस्मिक एनर्जी
स्प्रेड्स डिटेक्शन। कई बार हमारे एक बन जाता है, उसको आप शनिग्रह कह लीजिए, उसको आप तांत्रिक मांत्रिक किसी परिभाषित कर सकते हैं, किंतु विज्ञान उसको इवन स्पिरिट्स इवन एनर्जी के नाम से जानता है। और एक लेकर ये लेकर है सेल हार्मनी के साथ इसकी जो है संगतता प्रॉपर चाहिए। तो कुछ हमारे से डिटेक्ट करता है, तो चक्रों को इसके माध्यम से डिटेक्ट करेंगे। जो चक्र एक्टिवेटेड होगा उसमें इसके आप अच्छी तरफ जाएगा, चक्र करेगा। तो हम सबसे पहले चक्र देख रहे हैं इनके सहस्रार चक्र, जो लोटस चक्र होता है सबसे ऊपर टॉप पे, इज इट एक्टिवेटेड और नॉट, यस और नो। तो ये मूवमेंट दिखा रहा है, इसका मतलब ये एक्टिवेटेड है। इनका सहस्रार चक्र ठीक काम कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स ठीक काम कर रही है। अब इनका आज्ञा चक्र, थर्ड आई जो होता है हमारा आज्ञा चक्र होता है, बहुत ही सेंसिटिव चक्र होता है, इज इट वर्किंग और नॉट। थर्ड आई आज्ञा चक्र, इज इट वर्किंग और नॉट। तो ये आज्ञा चक्र जो है ब्लॉक दिखा रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस में जब आदमी होता है, किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहा होता है, उस स्थिति में आज्ञा चक्र ब्लॉक होता है। ऐसी स्थिति में सिर में भारीपन, सिर दर्द की शिकायत, बेचैनी, ये अक्सर दिखाई देती है। आपको ऐसा फील होता है जो बता रहे हैं? तो ये आज्ञा चक्र ब्लॉक का कारण है। उसका विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड, इज इट वर्किंग और नॉट? यस, इट इज वर्किंग। अनाहत चक्र, यस, अनाहत चक्र मतलब थाइमस ग्लैंड अच्छा काम कर रहा है। अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, इज इट वर्किंग और नॉट? ये ठीक काम कर रहा है। मणिपुर चक्र का संबंध आपके उदर संस्थान से होता है, पेट से होता है। स्वादिष्ठान चक्र, इज इट वर्किंग और नॉट? यस। मूलाधार चक्र, यस। तो इनके आज्ञा चक्र को छोड़ के सभी चक्र ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो कॉस्मिक एनर्जी का जो फ्लो है कहीं ना कहीं रुक रहा है, क्योंकि आज्ञा चक्र ब्लॉक है। तो ये हमने 12 फ्रीक्वेंसी पे इसको सेट किया है और हम जो है कॉस्मिक एनर्जी को देख रहे हैं। कॉस्मिक एनर्जी आज्ञा चक्र से ठीक फ्लो नहीं जाती है। तो चाहते हैं कैलोरिक एनर्जी, कैलोरिक एनर्जी के लेवल पे इनका बिल्कुल ठीक है। कैलोरिक एनर्जी सुबह सुबह नंगे पैर अगर आप हरी घास में दूध में घूमते हैं तो उससे भी आपको कैलोरिक एनर्जी, मनोबल ऊर्जा प्राप्त होती है। 6.7 ऐसा पॉइंट है कि जिसको हम कह सकते हैं कि कोई सब चीज सही पाई जाती है। तो इसको हम चेक करें 6.7 इसका जो फ्रीक्वेंसी है, अगर होगा तो इस तरफ जाएगा, इसका क्वेश्चन है। सब कुछ भी से सिर्फ से हाथ जोड़ के और यहाँ पे और चक्र को एक्टिवेट करने डीएनए है और मनोतंत्र की कथा आगे से क्या है। तो हमने है ना, मैं कुछ उसी जो यहाँ पर लिखा होगा कॉस्मिक। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो कॉस्मिक एनर्जी ये ऐसे बताएगा, इट्स ओके। ये दोनों हीलर हैं और कितनी वाइब्रेशंस हीलर है। कर्नाटका में, धारवाड़ में हीलिंग का काम मुझे, यानी कि मैं इसको अपना, देखिए सर, अब हम लोग उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, पहली बात है। आप आइए सर, प्लीज प्लीज कम। आपका आपने कौन कौन से स्टोन डाले हैं? अभी सर मैं ये प्लीज थोड़ी टू स्टोन कंपैटिबल टू पर्सन दूसरे मास के बल में, ठीक है? अच्छा है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे तो ये खुल रहा है। जो भी समस्या रहती है उसको जियोपैथी कहते हैं। इसी को
इसको बारे कभी साफ। ये ऑरा स्कैनर जो है कौन सा कौन कहाँ से है, वो है या राइट में? हाँ जी। तो अब आपका एकदम चलने तो लग गया अब वैसे? आप चला ही जी। नहीं रहे थे, बस सही तरह से इतना ही फर्क है। अब आगे जा रहे हैं तो हाथ आगे, वो लेकर एंटीना भी आगे जा रहा है, पीछे जा रहे हैं तो ये भी पीछे आ रहा है। ये हमारा स्टेप 1 हो गया इस पूरे प्रोसेस का। अब जो है आप इसको सीधा हाथ को रोक लीजिए बीच में। ये बिल्कुल ऐसा लगे कि ये फ्री फ्लो के तौर पर है। अब आप अपने क्वेश्चन को डिफाइन करें इसमें, कोई सा भी। मैं मंत्र चिकित्सा सीखना चाहता हूं, क्या मैं सीख पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगा? अगर सीख पाऊंगा तो ये आगे की तरफ गिरे, अगर नहीं सीख पाऊंगा तो ये पीछे की तरफ गिरे, या उल्टा कर लीजिए, जो भी आपको लगता हो कि ये इस तरीके से है। और फिर उसको फ्री फ्लो छोड़ दीजिए थोड़ी देर को, कि वो अपने आप मूव करे और अपने आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है वो पता करेगा। जी। क्या क्वेश्चन का आंसर आया? क्वेश्चन क्या था पहली बात तो? वही मैं क्या सीख पाऊंगा, सीख पाऊंगा, अगर सीख पाता हूँ तो आगे की तरफ गिरे, और नहीं सीख पाता हूँ तो पीछे की तरफ गिरे। ओके। अब इसे उल्टा कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन का उल्टा मतलब कि मैं बीज मंत्र सीख पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगा? अगर सीख पाऊंगा तो ये आगे की तरफ गिरे, नहीं सीख पाऊंगा तो पीछे की तरफ गिरे। आगे की तरफ। हम्म। सीख पाऊंगा तो बाहर की तरफ, और नहीं सीख पाऊंगा तो अंदर की तरफ। तो अब ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो अब आपको ये पॉइंट को ही बैलेंस करना है इन टर्म्स ऑफ बेसिक एनर्जी। कुछ टाइम आपको सवालों के जवाब सही मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, धीरे 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 जैसे जैसे। और इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने लंबिकाग्र चक्र को कमांड देनी है कि क्या ये चीज ऐसे होगी और नहीं होगी। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। ये पहला पार्ट हो गया, मतलब सेकंड पार्ट हो गया ये वाला। तो पहले उसको होल्ड करना, आगे पीछे मूव करना, और फिर एक बैलेंस स्टेट में जब वो आ जाए तो उसको मूव करके देखना है कहाँ तक बैलेंस रह रहा है। जहां बैलेंस ब्रेक हो रहा है वो चेंजिंग पॉइंट है उसका। और कोई क्वेश्चन कर लीजिए। सवाल भी तो नहीं समझ में आते। ये इस बड़ा ही सिंपल सा पार्ट है, ये कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच हो, बस इतना ही। थोड़ी सी प्रैक्टिस। कोई भी क्वेश्चन करिए। ये गौरव शुक्ला मेरे को मंत्र चिकित्सा सिखा पाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे, ऐसे डाल लीजिए क्वेश्चन। अगर सिखा पाएंगे तो आगे को गिरे, और नहीं सिखा पाएंगे तो पीछे गिरे। बिल्कुल न्यूट्रल, मूव नहीं कर रहा है अगर कहीं। सिखाने में तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर न्यूट्रल खड़ा हुआ है तो। मेरे सीखने में हो सकता है सर। हाँ तो ठीक है, न्यूट्रल। देखिए, सारा खेल ये तीन चार चीजों का ही है। एक न्यूट्रल स्टेट को आइडेंटिफाई करना, एक जो आप यस या नो, मतलब ये बिल्कुल धीरे धीरे करके उसी अप्रोच से बात करना शुरू कर देगा। नहीं सर, थोड़ा आइडिया तो लगा। हाँ हाँ, बड़ा सिंपल है कोई। मैं कह रहा हूँ ना, है। आरती को तो सिर्फ 15 मिनट ही लगे थे। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं था।
क्या हुआ, क्या क्वेश्चन कर रहा था? अब सिखा पाएंगे सर, सीख है पाऊंगा। अच्छा, चलो ये तो ठीक है, अच्छा हो गया। अब जो है आपके पास में वो रखा है, क्या कहते हैं, बोवी स्केल। जी। इसको सामने रख लीजिए, अपने रेड एरिया अपने सामने रखिए, ब्लू अपने से दूर रख लीजिए। तो वो शीट का प्लेसमेंट हो गया। अब क्वेश्चन करिए, मेरे इस रूम की एनर्जी कितनी है जिसमें आप अभी बैठे हुए हैं, और वो जो बैलेंस स्टेट है उसी को हाथ को बैलेंस में रख के फिर उसको चलाना है इसके ऊपर। सर ये 7,000 के आसपास आ रही है। हाँ, बट ये एंटीना जल्दी गिर रहा है, तो होल्ड करने के तौर पे थोड़ा सा ध्यान करिए। शीट हाँ को इतना होल्ड। दूरी पे रखिए ताकि आप धीरे धीरे भी इसके ऊपर चला सके। जी। हाथ में झटका नहीं आना चाहिए, जी। और दूसरा पार्ट, इसको ऐसे चलाइए बिल्कुल जैसे आपको पता चल रहा है कि नीचे का जोन कौन सा है और किस तरह से बदल रहा है। और जितनी देर ये चल रहा है कोशिश करिए आपकी आंखें उतनी देर बंद रहे आगे पीछे चलाने के वक्त, ताकि 7,000। आपका जो ध्यान जो है वो ना उसमें बिगड़े। सर वही 7 से 8 हजार के बीच आ रहा है। हाँ, तो ये मतलब आपको यही 3-4 स्टेप्स पता होने चाहिए, बाकी यूट्यूब वीडियो देखते रहिए, वो बहुत सारी चीजें हैं, बट मोरलेस फालतू बातें ज्यादा हैं, काम की बातें बहुत कम है। जैसे वो आपने वो बोला कि वो प्राणी हीलर वाले ने उसने बोला कि 17,000 मैंने इस जगह की एनर्जी कर दी लेकर एंटीना से, वो झूठ था। क्वेश्चन करिए आप अपने ही लेकर एंटीना से, क्या लेकर एंटीना से किसी भी जगह की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है? यस तो आपकी तरफ गिरे, नो तो पीछे की तरफ गिरे। नहीं। ठीक है ना? ऐसे करके ये प्रोसेस जो है, आप एक चीज से बात करना शुरू हो जाते हैं। नो आ रहा था। मतलब ये बेस तरीका हो गया। लेकर एंटीना जो है वो एनर्जी डिवाइस सेंस करने के लिए है, डायग्नोस करने के लिए है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द एनर्जी। सर रूम की एनर्जी कैसे बढ़ाई जाए? यही मेरा प्रोग्राम इसी बात के ऊपर है। अब जी। कोई सा भी आप बीज मंत्र लिख रहे हैं उसकी शीट को सामने रख लीजिए। सर या तो अभी अभी बहुत अच्छे से, या तो हाथ चलाने पे हो सकता है ये गिर जा रहा है जल्दी, नहीं, वो क्योंकि देखिए, रिजल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, चलाने के जी। ऊपर फोकस करिए। पर ये लेकर एंटीना केवल आपके इंस्ट्रक्शन सुनता है। आपका टंग टू पैलेट होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, लंबिकाग्र चक्र पे आपका अटेंशन होना चाहिए, हाथ को धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो एंटीना में मूवमेंट क्या आ रहा है उसको स्टडी होना चाहिए।
सर अभी रुक नहीं पा रहा ये, मतलब वो कोई आ नहीं, जाएगा, करता रहूंगा आ तो आ जाएगा। जाएगा। अब आप प्रैक्टिस करिए आराम से, हम कल कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आरती आज और कल 2 दिन क्लास नहीं ले पाएगी, वो जी मेरे को जी। ही करना है। तो आज का रीजन वो है कि वो 12 बजे थाली वगैरह निकलनी होती है, खाना बनना होता है अमावस्या के पितरों के हिसाब से। कल जी पहला जी। नवरात्र है उसकी वजह से। और दूसरा, मैंने वो रेमेडी शेयर कर दी है एक्लिप्स वाली, तो वो कर लीजिएगा। वो वही उसका जो रात का टाइम है सर, उसका तो 11 बजे और से रात साढ़े को 11-12 बजे। तो बीच में ही कर लेंगे उसको। अब मतलब मैं तो रात को ही जाता हूँ। मेरे तो जी जी। जो भी मेडिटेशन वगैरह होती है वो मेडिटेशन करवा के, या तो उससे पहले जाता हूँ या बाद में जाता हूँ। मतलब जाता तो मैं तभी उसी टाइम पर हूँ जब वो एक्लिप्स का टाइम होता है। और मेरे ठीक यहाँ है से सर। तो 22 किलोमीटर दूर है। जी। तो इस वजह से तो कोई ना कोई जिसने और करना होता है वो भी मिल जाता है, तो साथ साथ 2 जने चले जाते हैं, 2 या 3 जो भी होता है। ठीक है सर। तो इसलिए जो है, अब आप ये प्रैक्टिस करिए, आपको यही करना है बस। जितना ठीक है सर, अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा, हम कल भी प्रैक्टिस ही करेंगे। कर लूंगा सर। क्योंकि रेमेडी तो वो, मतलब रेमेडी तो जैसे ऐसे मानिए जैसे खून में है मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके की कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, सामने रखते जाइए, मैं उसकी रेमेडी जो है वो बता सकता हूँ। ठीक है तो सर। रेमेडी का प्रॉब्लम नहीं है। 5 तरीके के यंत्र हैं, वो भी शेयर्ड है। कोई सा भी एक बीज मंत्र की एनर्जी मेजर करना, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करना है इसको। पहले आप अपना अभ्यास कर लीजिए। जितना आपका अभ्यास अच्छा होगा, उतना जब ये आप बैठ के पूरा कर पाए, फिर खड़े होके कीजिएगा। ठीक। क्योंकि हर चीज कैमरे से मैं देख नहीं सकता। बट आपको, जी जैसे आपका रूम है, इसमें 7,000 एनर्जी आ रही है, तो चारों कॉर्नर्स में आप घूम कर देखिए, या फिर पेपर के ऊपर बनाइए और फिर चारों कॉर्नर्स की एनर्जी को देखिए। तो ऐसे ठीक। करके धीरे 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 करके हम एक उसमें, बट खड़े होके वो, क्योंकि लक्ष्मी जी तो खड़े होके आराम से चल रही थी लेकर एंटीना को लेके, और जहां जहां जैसे स्टेयर केस के नीचे का हिस्सा था, फट से उनका एंटीना जो है वो डिप मार रहा था। उन्होंने बोला हमारे यहाँ कोई पिरामिड वाला आया था, और पिरामिड उन्होंने लगाए थे। मैंने कहा पिरामिड लगाकर कोई काम हो रहा होता तो अभी भी एनर्जी क्यों डिप मार रही है? डिप मार रही है इसका मतलब जीने के नीचे एनर्जी कम है आपके। तो ऐसे करके जो है वो पूरा पार्ट था। तो हर चीज को इवैल्यूएट करने के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और वो जो प्रिंट आउट है 15 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला, उसमें जी जो है रिकॉर्ड बनाकर रखना है आपने। जी। अब आपका हाथ तो चलना शुरू हो गया, प्लस माइनस थोड़ा सा है, क्योंकि एक तरफ का हाथ दूर हो गया, एक तरफ का पास में है, ये फर्क है। दोनों बैलेंस्ड उसमें रखने हैं। हाँ बस, अब आप प्रैक्टिस करिए आराम से, कल कनेक्ट करते हैं। जी। ठीक है ठीक है जी। सर। ठीक है। प्रणाम सर। ओके जी। हाँ जी मैम। तो पहले तो कल का थोड़ा सा फीडबैक बताइए, कल कुछ मुझे साफ। एक तो मुझे कुछ दिनों से वो कान में सुनाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे वो भी देखना पड़ रहा है। कल रात का आपका जो मेडिटेशन था उसका हम्म फीडबैक। आप कुछ कह रहे सो थे, मैंने विजुअल्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे थे, ऐसा कुछ बोला था आपने जो जी मुझे याद है। हाँ जी, something very new type of, so I was not able to recognize all those. हम्म। नहीं, मैंने तो वही वाली एक्सेल शीट को एक्चुअली वो,
जी, तो अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करें, कुछ और करना है? मेडिटेशन को। ठीक है, तो हम मेडिटेशन कल रात वाला ही रिपीट करते हैं। मैंने उसमें से लक्ष्मी बीज मंत्र हटा दिया, तोय लक्ष्मी रखा है आगे पीछे। हम्म। ठीक है ना? तो जी। ये दुर्गा सप्तशती का चैप्टर 2, 3, 4 जो है, ये महालक्ष्मी वाला पार्ट है। हम्म। तो एक तो इन्होंने क्योंकि बोला तो मुझे एकदम से लगा, पहले तो मैं इग्नोर करा था, लक्ष्मी मैम ने बोला तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर पता नहीं एकदम से क्या स्ट्राइक करा मेरे को। मैंने कहा तेरे को दुर्गा सप्तशती तो कंप्लीट करनी है आगे पीछे और सारा कुछ, तो फिर मैं उसके तौर पे कनेक्ट हो गया। एक सेकेंड। अब की बार 10 नवरात्रे पढ़ रहे हैं। हम्म। अब की बार एक तिथि एक्स्ट्रा है, हम्म। तो ये भी अच्छा है। मतलब अगर पितृपक्ष की तिथि ज्यादा होती है तो खराब होता है, अगर नवरात्रि की तिथि ज्यादा होती है तो अच्छा होता है। और ना नवरात्रि में कोई चेंज हो ना पितृपक्ष में कोई चेंज हो, वैसे कोई तिथि का एक्स्ट्रा होता है तो वो साल मध्यम होता है। तो अच्छा बुरा हम्म। और वो उसको चेक करने का भी तरीका जो है वो नवरात्रि से कनेक्टेड है। सर अगर मतलब एक तिथि सूर्योदय के बाद में शुरू हो रहा है और सूर्योदय से पहले खत्म हो रहा है, तो किस दिन को पकड़ना चाहिए उस तिथि को? उदया तिथि को माना गया है एक्चुअली, मेन सोर्स जो माना गया है। हाँ, लेकिन उसके बाद सपोज 6:30 में सनराइज हो रहा है और तिथि स्टार्ट हो रहा है 8 o'clock को इन द मॉर्निंग।
तो वो तिथि उस दिन है ही नहीं ना, इसका मतलब ही सिर्फ ये हुआ। और उसके नेक्स्ट डे भी सनराइज से पहले वो तिथि खत्म हो जा रहा है फिर। एक सेकंड। प्लीज इसको स्कैन कीजिए जरा, मैंने एक्सेल शेयर करी है व्हाट्सएप पे।
जी। It appears like a huge form of Devi is like a night sky when there is a moon and all around there is star. It's like there is a huge form of Devi, and there are other form of Devi who are like sitting or maybe very far. They are appear to be very small, but they are all connected to the huge Devi through that golden radiation, and whatever the energy is coming out from that huge Devi, it is beautifying all around. Means it's in constantly motion or transformation or changing, but it is wherever the energy is means touching, it's either beautifying it or expanding or changing like that way. मतलब एनर्जी पहले से बढ़ गई है, और हम्म हमने जो लास्ट उसको शेयर करा था उससे एनर्जी और बढ़ रही है, नहीं? जी। बहुत ही ज्यादा। ठीक है, मतलब एक्चुअली चेक हमारे पास होता नहीं है ना कि जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजों का फर्क आ रहा है, तो उसकी वजह से। तो स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। एक सेकंड में पानी उठा। इसमें सहस्त्र नाम और दुर्गा सप्तशती का 2 and 3 and 4 चैप्टर पूरा है। ये जो क्या एक्सेल चीज? सीट आप शेयर के ये जो एक्सेल सीट आप शेयर के अभी, उसमें क्या इसमें मतलब जो सहस्त्र सहस्रनाम है वो है, और सहस्रनाम खत्म होने के बाद चैप्टर 2, 3, 4 है। देखिए, मैंने तो अब की आप बार क्या पूरा अटेम्प्ट करें। करा, हमारा जितना भी हम्म वो हम चीजें जानते हैं, चाहे हम बीज मंत्र का उच्चारण लेकर चलें चाहे किसी और प्रक्रिया का, हमारा उच्चारण होता ही कैसे है ये हमें नहीं पता चल पाता। तो या तो लिखना या बोलना दोनों टैली नहीं होते। तो अब की बार मैंने एक चीज तो अच्छी ये हो गई कि जब मैं ये मेडिटेशन हम्म कराता हूँ उस टाइम पर वो पूरा एक्सेल में बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी सामने आता है, और बैकग्राउंड में मेरा जो है वो भी चल रहा वॉइस। होता है, उच्चारण भी हो रहा होता है। तो कोई भी व्यक्ति आंख खोल करके भी मेडिटेशन कर सकता है। वो हम्म अपनी टेंशन को मेरी आवाज पे रखे और अपनी आंखों को जो है इस शीट के ऊपर रखे और उसको चलते हुए ऑब्जर्व करे। हम्म तो वो जो एस्पेक्ट था वो अब की बार बना, तो मुझे लगा कि ये बहुत यूटिलिटी जनरेट करेगा। हम कोई भी मंत्र अगर हम्म सामने रख रहे हैं और वो हम्म एक्सेल के हिसाब से है तो वो यूटिलिटी बन जाएगी, ऐसा मुझे समझ में आया। मतलब